नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत खूब हंगामेदार रही। इस दौरान लोकसभा में एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में खाली पड़े पदों और ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा है। ओवैसी ने कहा कि देश की ऐतिहासिक इमारतें बदहाल होती जा रही, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एएसआई अब हिंदुत्व विचारधारा की कठपुतली बन चुका है और अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा रहा है। स्पीकर सर, out of a sanctioned strength of 15,276, there are 6,516 vacancies in Ministry of Culture, attached offices and autonomous organizations. And it must be remembered that this government has been in power for last 11 years. Sir, my first supplement to the Honourable Minister is, with over 67 vacancies in conservation branch and significant shortfalls across key divisions like archaeology and epigraphy, how does the ministry assure this house that centrally protected monuments are being adequately maintained and preserved? What specific measures are being taken to address the impact of these shortages on research, heritage, management, routine conservation? The reason I ask this question, sir, that CAG report of 2013 highlighted 92 untraceable monuments. In 21, they have accepted 24 remain missing alongside 501 untraceable objects in Anthropology section. Why has the government failed to prioritize filling critical ASIs? And does he know that there are water leaks, cracks, vegetation growth on Taj Mahal? How do you justify your failure to ensure proper upkeep even for India's most iconic monuments? And does he have the manpower in ASI to protect Taj Mahal and the beautiful Charminar? Second supplementary is, has the ministry considered the standing committee recommendation to develop a dedicated management cadre within ASI for daily administration of centrally protected monuments, including visitor management and executive measures? Do you have any plans to bifurcation of ASI into two wings, one focus on exploration, excavation and conservation, and other handling revenue generating activities? Sir, lastly, the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property is operating only at 24% sanctioned strength with 25 employees against 103 sanctioned posts. Is it not true that it impacts the ministry's critical research, preservation, restoration? And lastly, what steps is this government taking to ensure that the ASI is detoxified? Because from last 50 years, ASI has become a handmaiden of Hindutva ideology. Whether they will ensure that ASI works according to the cause of our constitution, that is secularism and pluralism. ओवैसी ने ताजमहल की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि जल की रिसाव हो रहा है, ताजमहल में दरारें आ गई हैं। उन्होंने एएसआई में स्टाफ की भारी कमी का मुद्दा भी उठाया। पूछा कि इतने महत्वपूर्ण विभाग में खाली पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। वहीं ओवैसी के इन आरोपों का पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवाब दिया। उन्होंने ओवैसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एएसआई पूरी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और ऐतिहासिक धरोहर की देखभाल भी की जा रही है। उन्होंने माना कि एएसआई में स्टाफ की कमी जरूर है, लेकिन इसे जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8,750 पदों की कमी है, जिसमें से 3,203 पद यूपीएससी और एसएससी के अधीन भरे जाने हैं। वहीं शेखावत ने कहा कि ताजमहल में मोटर लीक की एक घटना जरूर हुई थी, लेकिन इसे तुरंत ठीक कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और विकास दोनों के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य सदस्य ने जो प्रश्न किया है, थोड़ा विस्तृत उन्होंने 5-6 तरह के विषयों को एक साथ में छूने की प्रश्न करने की कोशिश की है। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए और आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने ओवरऑल मंत्रालय में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की बात की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं, जहां माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, 8,755 टोटल हमारे यहाँ सैंक्शन स्ट्रेंथ है और यह सही है कि वर्तमान में 4,845 कर्मचारी उसमें विभिन्न स्तर पर कार्यरत हैं। लेकिन मंत्रालय के द्वारा और विभाग के द्वारा
यूपीएससी और एसएससी को जिन पदों पे भर्ती के लिए ऑलरेडी रिकमेंडेशन भेजी जा चुकी है और जिनकी भर्ती एसएससी और यूपीएससी के लेवल पर प्रक्रियाधीन है, वो संख्या 3203 है। और इसके अतिरिक्त 317 पद पेंशन के माध्यम से जो भरे जाने हैं, उनकी प्रक्रिया भी विभाग में चल रही है। इसके अतिरिक्त लगभग 300 के आसपास ऐसे पद होते हैं जिनको एसएससी और यूपीएससी को संसूचित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो 8,755 पद हैं, उनमें से 8,000 से 500 से ज़्यादा पदों पे या तो भर्ती है या उनको भर्ती करना प्रक्रियाधीन है। और मैं माननीय सदस्य के ने जो प्रश्न किया है कि कंजर्वेशन ब्रांच को लेकर के जो उन्होंने प्रश्न किया है, उसमें भी 831 पदों में से 270 पद फील्ड है। 561 वैकेंसीज के अगेंस्ट में 490 वैकेंसीज ऑलरेडी जो है यूपीएससी और एसएससी पे विचाराधीन है। और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद में, क्योंकि मोदी सरकार ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कराने को प्राथमिकता देती है, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही शीघ्र ये पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। माननीय सदस्य ने दूसरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है, ये मैं सदस्य के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूँ, जो अधिकांश पद खाली हैं 3200 के, उसमें अधिकांश पद एमटीएस के खाली हैं। और एमटीएस पोजीशन पर इस तरह का काम इम्पैक्ट न हो, उसको लेकर के हमें कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो है उसमें अपॉइंट किया हुआ है। जहाँ तक ताजमहल के रखरखाव का विषय है, मैं सदस्य और माननीय सदन के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। ये सही है कि उसमें वाटर लीक का एक इंसिडेंस ऐसा ऑब्जर्व हुआ था, लेकिन लगातार बरसात होने के कारण जो परिस्थिति हुई और उसको लेकर के तुरंत जो है उसको अमेंड किया गया है। भारत सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, पूरी तरह से जवाबदारी के साथ में अपने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। मैं सदन को और राष्ट्र को सुनिश्चित कराने को पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विरासत का सम्मान करते हुए, संरक्षण करते हुए विकास करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रहे हैं। बता दें कि ओवैसी के इस बयान के बाद से सियासी माहौल गर्मा गया है। जहां विपक्ष एएसआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सरकार इसे विरासत के सम्मान के साथ विकास का हिस्सा बता रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।